Hi, good afternoon. My name is Pratik Gupta and welcome back to Unacademy. So, as you know, people, that yesterday we had a special session on YouTube. On that session, we people announced that we all are going to start a series about the different sections of UPSC examination syllabus. तो उसमें से जो सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और जो सीरीज के बारे में मैंने कल अनाउंस किया था, दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो हमारी ये सीरीज होगी, मान के चलिए इसमें करीब 10 से 15 लेक्चर्स हम इन टोटल करेंगे। और उसमें जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ग्लोबल लेवल पे, वट एवर विच इज बिंग रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, जितनी भी एजेंसीज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दैट वट एवर डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच रेलिवेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों ही पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए, यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है आपसे इन एजेंसी से, इन ऑर्गेनाइजेशन से, इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, उनका मेन पैटर्न क्या होता है। प्रीलिम्स में आप मान के चलिए जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो नॉर्मली यूपीएससी इस तरीके से पूछता है कि वट एवर एजेंसी वी हैव इन द गिवन क्वेश्चन, लाइक मे बी इंडिया एज अ मेंबर ऑफ इट और नॉट, इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है, इस एजेंसीज के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं होने के एट ए ग्लोबल लेवल। Then after this you may find this question, where is the headquarter. So this kind of question they're being simply putting in the prelims in the form of statement and the other. And when it comes to the mains examination, normally they're being asking about the relationship of this agency with India with respect to the development of our economy from that particular agency's perspective. ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे साथ पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए, हमारी सीरीज में मेनली हमारा यही पर्पस होगा that all your concept and the basics will be cleared about it, so that whatever question will be asked by the UPSC in the prelims and mains examination, you will be able to tackle it without any problem. तो आज के लेक्चर में जो हमारी एजेंसी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द AIIB, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। तो इसके बारे में इन एंड आउट में आपको बताऊंगा, बट ये ध्यान रखिएगा, आर डिस्कशन विल बी स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ज्योग्राफी नहीं बताने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा आपको ये भी नहीं बताने वाला हूँ डीप में जाके कि इनको क्या क्या करना पड़ता है। केवल इतनी डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बिकॉज आर पेपर टाइटल इज व्हाट, जनरल स्टडीज, सो वी नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एजेंसीज और द अदर फ्रॉम द जनरल पर्सपेक्टिव। ओके। But before initiating the lecture, we need to discuss about Unacademy. So as you know, Unacademy is the largest learning platform on online. The toppers were part of us. Then after that, India's best educators you can simply find on the Unacademy, and you can choose as per your liking. Then you can join us on the Telegram and community link. And then currently 20% offer is going on. So by joining the Iconic courses for 24 months, you will be able to save around 24,000 rupees. And by joining the Plus course, you will save around 16,000 rupees for 24 months. Then the new batch is going to start from 29th of September in the bilingual. So you can join if you want to simply fast track your preparation for 2023 prelims examination. And now we have a 0% EMI offer, which is always on for the economically backward section people. So you can simply contact the team by calling on this particular number. Now let's start discussing about the AIIB. देखिए, आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड डिवाइडेड है is basically being divided into three types of country. One is, you can say, those countries which are developed country. Developed countries means currently they're being called as a high income countries, जिनमें आप नाम लेते हैं यूएसए का, यूके का, जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, इन सब कंट्रीज के बारे में हम बात करते हैं। Then you have the countries which are basically the middle income countries. Middle income means that these countries are mainly the developing countries at a global level. Okay. And then you talk about the low income countries which are mainly the poor countries at a global level. तो तीन तरह की कंट्रीज में आप वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, हाई इनकम विच इज द डेवलप्ड, लो मिडिल इनकम दैट इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड देन यू हैव अ लो इनकम कंट्रीज विच आर नोन एज अ पुअर कंट्री, और दे वर आल्सो कॉल्ड एज अ लीस्ट डेवलपिंग कंट्री एट अ ग्लोबल लेवल। अब देखिए, जो मिडिल इनकम कंट्री हैं और जो लो इनकम कंट्री हैं, देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ बेसिक फैसिलिटीज टू द पीपल। यानी कि मान के चलिए वाटर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, शेल्टर का इशू है, सैनिटेशन का इशू है, 50 तरह की प्रॉब्लम्स आपको इन कंट्रीज में मिलेगी। जैसे अगर आप इंडिया की ही बात करें, सो वी हैव द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
एंड सो मेनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज वी आर हैविंग इन केस ऑफ आवर कंट्री। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, so when it comes to the other infrastructure, for example the economic infrastructure, if we talk about, then we have a problem in terms of road connectivity, roads नहीं है proper, railway connectivity proper नहीं है, अच्छी speed की trains नहीं है, airports की कमी है, then again you can say lot of economic infrastructure is also being kind of in deficiency। अब देखिए इन सबको पूरा करने के लिए we need money, we need resources, and resources, as you know, in case of our country, developing country and the least developed country, the resources are basically kind of very much limited, ठीक है। और जो resources भी हैं उनको आप ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं because you are not having very much educated manpower, okay, so that's why you need somebody to help you out, and that's why you can say the developed countries at a global level, I will specifically repeat this, developed countries at a global level initiated certain agencies to help the poor countries। वो अलग बात है कि जब उन एजेंसीज को ग्लोबल लेवल पे बनाया गया तो उनका पर्पस अलग था और आज पर्पस उनका अलग है, बट द पॉइंट इज व्हाट, एज अ डेवलप्ड कंट्री इनिशिएटेड देम, दैट्स व्हाई यू कैन से दे आर मेनली बीइंग डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब जैसे अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें, 3 एजेंसीज की जो सबसे ज़्यादा फेमस है और मेनली सबने उनके बारे में सुना होता है, उनमें सबसे पहला नाम आता है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें एजेंसी जिसका नाम है IBRD, ओके, एंड देन द सेकंड इज कॉल्ड एज IDA, ओके। सो आप मान के चलिए वर्ल्ड बैंक which was started in 1944-45, it is mainly being completely dominated by USA। वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री उठा के देखिए, हमेशा वर्ल्ड बैंक के जो हेड होते हैं दे आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम US, okay, not even a single time you can say any person headed the World Bank which was not from USA, every time it has been dominated by USA। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप जानते हैं काफी चर्चा में, काफी न्यूज में, आने वाली लेक्चर्स में हम इसके बारे में बात करेंगे कि IMF काम कैसे करता है और इंडिया का इसमें क्या रोल है। IMF की बात करें तो IMF is completely dominated by USA and moreover by the European countries। Like for example, if I'll tell you, IMF is always headed by a person from Europe only। कभी भी कोई भी आपको एशिया का या किसी और कॉन्टिनेंट का बंदा आपको IMF का चेयरमैन बनते नहीं मिलेगा। इट इज ऑलवेज बीइंग लेड बाय whom? बाय द पर्सन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक US का दबदबा है, IMF अगेन USA एंड यूरोप का दबदबा है। और जिस बैंक के नाम के अंदर एशियन लिखा हुआ है, सोचिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, उसको भी डोमिनेट कौन करता है? उसको डोमिनेट करता है अगेन आपका USA एंड जापान। बोथ आर हैविंग ऑलमोस्ट 15% शेयर होल्डिंग इन दिस पर्टिकुलर बैंक। सो इन अ वे यू कैन से, though the name is Asian Development Bank and is being founded in the 1960s and all, but the point is what, it is also being dominated। तो आने वाली क्लास में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सारे बैंक जो हैं जिनसे हमें मदद मिल सकती है for the purpose of taking care of social issues and moreover the economic infrastructure gap, these are all being dominated by these developed country। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है ग्लोबल लेवल पे, अगर उस कंट्री को जिसको पैसे चाहिए डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर उनका रिलेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत अच्छा है, then you can say it will not be very difficult for them to get money from these banks and the agencies। बट अगर रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो उसके अंदर मान के चले कहीं ना कहीं पैसा पाना और उसको अपनी डेवलपमेंट के काम के लिए यूज करना बहुत टफ हो जाता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए एशिया में 2 ऐसी कंट्री हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उसमें नंबर 1 पे आता है आपका चाइना और नंबर 2 पे आता है इंडिया। अगर यहाँ पे मैं इंडिया की बात करूँ, चाइना को मैं साइडलाइन कर दूँ, अगर यहाँ पे मैं इंडिया की बात करूँ, बिकॉज वी पीपल आर लिविंग हियर एंड वी नो वी नीड द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मान के चलिए हर 5 ईयर प्लान में, जो अब तो बंद हो गया 5 ईयर प्लान का फंड आप, बट मान के चलिए इन द 11th 5 year plan which was there for 2007 to 2012, government of India committed that we are going to spend around $500 billion for the infrastructure development। वहीं पर 12th 5 year plan की बात करेंगे, so the government of India committed that the Indian economy is going to spend around $1 trillion in the infrastructure development।
और आजकल तो आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी में बहुत लंबे टर्म के लिए बात होती है। तो गवर्नमेंट ने अभी जो अनाउंस कर रखा है वो ये है कि बाय 2040 वी विल इन्वेस्ट अराउंड 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो पॉइंट ये है, पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, देखिए काफी सारा पैसा तो हमारे पास खुद ही है, द लॉट ऑफ कैपिटल दैट वी कैन अरेंज, बट द पॉइंट इज व्हाट, ऑन द टॉप ऑफ दैट वी नीड एडिशनल हेल्प फ्रॉम दीज एजेंसीज। अब देखिए, ये जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, जो भी हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, ये नॉर्मली जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको आप नाम देते हैं सॉफ्ट लोन का। सॉफ्ट लोन इज व्हाट, अ लोन विच इज कमिंग विद द लोअर और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग अ लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि जो हमें लोन मिलेगा वो मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे हमें मिलेगा, और जो उसकी रीपेमेंट पीरियड होगी वो 10, 15, 20, 25 साल, अच्छा खासा टाइम हमें मिलेगा जिसके अंदर हम उसको रीपे कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है देखिए, when China got really frustrated at a global level, and when they saw that when it comes to getting money from all these banks, you always need to please these developed countries. So they decided that we want to have a separate bank at a global level who is going to simply provide money to whom? Who is going to provide money to the, the developing country. And there you can say that particular bank will be dominated by whom? That particular bank will be dominated by the developing country and moreover the other countries, which requires money. और इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि उन कंट्रीज का यहाँ पे हिस्सा नहीं होगा जो हमेशा ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की चीजों को कोशिश करते हैं। और देखिए ग्लोबल लेवल पे अगर आपको बात करें तो दो ही ऐसी कंट्रीज आती हैं जो हमेशा अपना इन्फ्लुएंस बनाने की या कायम करने के लिए बात करती हैं। उनमें नंबर 1 पे आता है आपका यूएसए, और नंबर 2 पे आपकी बात आती है तो कहीं ना कहीं जापान। अब देखिए जापान की अलग बात है, जापान हमसे काफी फ्रेंडली है, बट द पॉइंट इज व्हाट, US is one of the country which is always trying to dominate everything at a global level because they consider themselves कि भैया हम तो राजा आदमी हैं। ठीक है, तो बात शुरू हुई मान के चलिए 2009 से, ठीक है 2009 से, बट बिफोर दैट अब देखिए ये तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि 2040 तक हमें 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर चाहिए होगा। पर वहीं पे 2010 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट, दे प्रोवाइडेड that the Asian countries need around 8 trillion US dollar between 2010 to 2020 for the infrastructure development। और मान के चलिए इतना पैसा अरेंज नहीं हो पाया, और जितनी डेवलपमेंट हमें करनी थी उतनी डेवलपमेंट एशियन कॉन्टिनेंट में और बाकी गरीब देशों में उतनी चीजें नहीं हो पाई। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखिए इसका प्रपोजल सेटअप करने का स्टार्ट कैसे हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, द प्रोसेस स्टार्ट इन 2009। 2009 की बात है, जो चाइना के बेसिकली देयर इज अ वन थिंग कॉल्ड वाइस चेयरमैन ऑफ चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, अ चाइनीज थिंक टैंक at a Bao forum in April 2009, they basically proposed for the first time that we need to have such kind of a bank at a global level that is going to help the developing country. Getting? अब देखिए ऑफिशियल डिस्कशन स्टार्ट हुई 2013 में, जब 2013 में जो चाइनीज कंट्री की जो लीडर है जाई जिनपिंग, जब वो इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया में अक्टूबर 2013 में पहली बार ये प्रस्ताव रखा गया कि हमें एक ऐसा बैंक चाहिए जो हम कंट्रीज की हेल्प करे, एंड दैट बैंक विल नॉट बी डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, सेम बात फिर अप्रैल 2014 में अप्रैल चाइना के जो प्रीमियर है जिनका नाम है लाई क्वांगेंग, he delivered a keynote speech and he said that we need to have such kind of a bank at a global level। और फाइनली बातचीत की गई, और बातचीत करने के बाद चाइना ने डिसाइड कर लिया कि हमें इस बैंक को बनाना है। किस बैंक को? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को हम बनाएंगे एट एनी कॉस्ट। ओके, so initially they proposed that the paid up capital of this particular bank will be around 50 billion US dollar, which was double to almost 100 billion US dollar। अगर मैं बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो टोटल कैपिटल है उसका 2/3 साइज है आपका AIIB का, और अगर आप वर्ल्ड बैंक से कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में दिस पर्टिकुलर बैंक कॉल्ड AIIB इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स साइज। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा मोटा बैंक नहीं है, द बैंक इज क्वाइट ह्यूज। देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ बैंक का, तो उसमें लिटरली बैंक को इसको आप एक तरह का बैंक मत समझ लीजिएगा। दैट मीन्स यू पीपल कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट देयर एंड यू कैन डिपॉजिट मनी, नो, it is basically a bank which is going to simply help the developing country for the purpose of infrastructure development। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेंगे? they will provide something called
सॉफ्ट लोन्स दे विल सिंपली प्रोवाइड। ठीक है, अब देखिए 2014 में जब ये डिसाइड हो गया, चाइना ने डिसाइड कर लिया कि दिस बैंक इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ ग्लोबल लेवल, देन इन 2015 दिस सिंपली इनवाइटेड इंडिया। तो इंडिया को इनवाइट किया गया और इंडिया को बोला गया कि सर आप इसके पार्ट क्यों नहीं बनते हैं। ओके, सो you can say on 24th of October 2024 at 21 countries signed a memorandum of understanding regarding the AIIB in Beijing, China 2014, and then finally it was formed in 16th October 2016। और जैसा मैंने आपको बोला कि 2015 में इंडिया को इनवाइट किया गया टू बी पार्ट ऑफ इट, और इंडिया एक्सेप्टेड इट एंड देन इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ दिस AIIB। अब देखिए करेंटली अगर हम बात करें तो नाम चाहे इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, but in total they have around 105 member, but again dominated by the Asian country। 42 जो members इसके हैं वो एशिया से हैं, 26 are basically from Europe, do remember including UK also, then 20 from Africa, 8 countries from Oceanic and 8 countries from South America and 1 is North American country। So in total they have 105 members। अब देखिए इनमें अगर बात करें डोमिनेशन की, तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर इस बैंक का है वो है आपका China। So China is having a shareholding of around 26.5%, and the second largest shareholder is basically India with a shareholding of around 7.5%, and then followed by Russia which is around 6% something। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर बड़े शेयर होल्डर्स की और बात की जाए जिनके शेयर होल्डिंग 2% से ज़्यादा है इसके अंदर, सो उसके अंदर नाम आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूके आर हैविंग मोर देन 2% शेयर होल्डिंग। मान के चलिए जब साउथ कोरिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, बाकी कुछ और डेवलप्ड कंट्री ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, इन सब ने बात करी कि हम AIIB के मेंबर बनेंगे, देन यू वॉन्ट बिलीव अमेरिका सेड दैट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ इट। अमेरिका चाहता था कि वो इन सब का मेंबर ना बने, बट द पॉइंट इज व्हाट, all these countries say that we are a sovereign country and we have a right to decide that to which agency we want to be part of it and which agency we do not want to be part of it। तो इन सब ने अप्लाई किया and then they simply became the member। तो करंटली मान के चलिए 105 कंट्री हैं जो उसके मेंबर हैं, बट देयर आर 15 मोर prospective members are being there who might become the member of AIIB very soon। Are you getting what I'm trying to say? So point ये निकल के आता है कि AIIB जो बेसिकली अभी काम कर रहा है वो 105 कंट्री के साथ मिलके काम कर रहा है। दैट मीन्स दे विल सिंपली प्रोवाइड लोन्स टू दीज कंट्री एंड द लोन्स विल बी बेसिकली द सॉफ्ट लोन। अब देखिए एक पॉइंट जो यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इसका नाम तो बैंक है, बट अगर मान के चलिए इसके अंदर लोग पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, देन फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेज दे बीइंग एबल टू अरेंज मनी। ये क्वेश्चन देखिए हमेशा माइंड में आता है कि अगर बैंक नहीं हो तो पैसा कहाँ से आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आपकी मल्टीलैटरल एजेंसीज बनती हैं ग्लोबल लेवल पे, उनके केस में व्हेन इट कम्स टू रेजिंग मनी, अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, किसी की भी बात करें, तो वो ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटीज इश्यूज करती हैं। दे आर इशूइंग समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटीज एंड दे आर बेसिकली सेलिंग दिस सिक्योरिटीज इन डिफरेंट कैपिटल मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग मनी। और मान के चलिए AIIB को सर्टिफाई किया है ग्लोबल लेवल पे तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हाईएस्ट रेटिंग से, एंड दीज नेम्स आर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, देन यू कैन से फिच एंड मूडीज एंड देन यू हैव दी मूडीज। तीनों ने इनको सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी। दैट मींस व्हेन दिस पर्टिकुलर बैंक will sell their bond at a global capital market level, then whosoever will buy it, they are being totally fine in terms of getting their money back। There is no chance of default at all। Are you getting what I'm trying to say? So that is what basically they have provided, and what is the size of AIIB is around $100 billion US। अब ये पॉइंट आता है कि हम इसके मेंबर तो हैं, बट हमें इससे कितना बेनिफिट मिल पाया है in case of our country। So for this purpose I'll show you a report here that in case of our country what is the amount of benefit we people are being able to get। So that is what the report is being given by AIIB। तो ये रिपोर्ट मैंने उन्हीं की वेबसाइट से निकाली है और देखिए इसमें क्या लिखा है, इंडियाज इकोनॉमिक हैड ऑलरेडी बीन slowing down before the COVID-19 pandemic, which coupled with the associated social distancing measures introduced since March 2020 had a significant impact on the economy financial year 2020, fiscal year ending on March 2021। okay? अब देखिए यहाँ पे काफी कुछ इंडिया के बारे में बताया गया और फिर इसी टेबल में आप देखेंगे कि कितना लोन हमें इनसे मिला है। सो एज यू कैन सी 2020 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2021 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2022 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2023 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2024 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2025 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2026 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2027 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2028 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2029 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2030 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2031 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2032 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन मिला है, 2033 में 1.3 ट्
The value of transaction that achieved financial closure nearly hold 16 billion US dollar in 2019 we received, and 8.6 billion dollar we received in 2020, matched by a drop in the number of transaction from 41 to 24. और इसके पीछे रीजन आप जानते हैं, द रीजन इज मेनली दी कोविड-19 पेंडेमिक। यहीं पे देखिए इस टेबल की अगर बात करेंगे तो इस टेबल में हमें बताया गया है द वैल्यू एंड नंबर ऑफ क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस बाय सेक्टर्स, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बताया गया किन किन सेक्टर्स में हमें इनसे फाइनेंस मिल पाता है। सो एज यू कैन सी we have a so the second is multiple sectors, then we have others, renewables, social, telecom, transport, water, and number of transactions. So basically on this side whatever numbers you people are being able to see, these are the number of transactions कि कितने हमें उनके साथ ट्रांजेक्शन्स हमारी हुई हैं, 10 20 30 40 50। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे, so in 2016 when the bank was started 24 transactions basically took place with the AIB, यानी कि इतनी डीलिंग हमने उनके साथ करी है। 17 में 36, 18 में 22, then 41, that was the highest in case of 2019, and then in 2020 only 24 transactions were done in total। ठीक है, यहीं पे आप अगर आगे बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर तो आपको मिलेगा दैट वैल्यू एंड नंबर ऑफ ओपन एंड अनाउंस ट्रांजेक्शंस बाय सेक्टर, यानी कि कितने सेक्टर्स के बारे में, यानी कि उनमें कितनी कमिटमेंट है, एंड मोर ओवर हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस वर अनाउंस विच वर न्यू ओके ऑन द पार्ट ऑफ AIIB, यानी कि कितना लोन हमें आने वाले टाइम में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाला है, ये इसके बारे में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यू विल गेट अ नेम ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स, और यू कैन से सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स विच आर बेसिकली बीइंग फाइनेंस्ड विद द हेल्प ऑफ AIIB, जिसमें आपको नाम दिखेगा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकेंड इज अबाउट दी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एंड देन यू हैव दिस पर्टिकुलर वन कॉल्ड भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तीन हैं। तो देखिए अगर पहले की बात करेंगे, द गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अक्रॉस द कंट्री। द प्रोग्राम एम्फसाइज 32 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन 4 phases, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विद कंप्लीट plug and play infrastructure up to the plot level and resilient and sustainable future ready cities. The program is estimated to cost around 100 billion US dollar. सेकेंड अब बात करेंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सो अराउंड 15 बिलियन की इसके अंदर कॉस्ट है, जिसके अंदर यू नो दिस थिंग देयर इज अ हाई स्पीड ट्रेन ऑफ 508.17 किलोमीटर ऑफ रूट इज सपोज टू बी मेड, एंड देन यू हैव अ भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड का मतलब है ऑल टुगेदर देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, और ब्राउनफील्ड का मतलब आपको पता होगा कि ब्राउनफील्ड इज ऑल अबाउट दैट यू वांट टू सिंपली इनिशिएट अ रेनोवेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। So that is basically in Andhra Pradesh will be developed through a public-private partnership with the GMR company, or whatever is the plan is. So this particular airport is going to handle around 6 million passengers per annum। 6 million का मतलब वो करीब करीब 60 लाख पैसेंजर्स को ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट केटर करेगा। तो मान लीजिए दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज जस्ट अ हाईलाइट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय द AIIB। उसी तरीके से इस रिपोर्ट में जब आप आगे जाएंगे, सो यू पीपल विल बी एबल टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ डीलिंग्स दे आर बीइंग डूइंग विद द इंडोनेशिया। सो व्हेन यू सी द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच वी पीपल आर बीइंग गेटिंग, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द दिस AIIB। तो मान के चलिए कहीं ना कहीं एट अ ग्लोबल लेवल जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज की डिपेंडेंस वर्ल्ड बैंक IMF पे ज़्यादा बढ़ गई थी, स्पेसिफिकली आई विल से जितनी डिपेंडेंस हमारी वर्ल्ड बैंक पे थी, उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए इस तरह के बैंक्स को बनाया जा रहा है। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई प्रोवाइडेड यू। सो इन दिस एंड मोर ओवर एज यू नो कि AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो होगा आपका बीजिंग चाइना के अंदर, वहीं पे है। ठीक है, एंड मोर ओवर ऑल द मेंबर कंट्रीज आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओवर देयर। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव इस बैंक के अंदर है वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस के होते हैं वो इसके बेसिकली ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं AIIB के। ठीक है, सो ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड द अदर यू कैन सिंपली फाइंड आउट ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस। सो पॉइंट क्या है, अगर आपसे ये पूछते हैं AIIB का मेन पर्पस क्या है, या क्या मतलब कुछ भी रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, देन यू कैन सिंपली आंसर इट नाउ, बिकॉज यू नो कि व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, व्हाई इट वाज एस्टेब्लिश्ड, एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। And the second thing, if somebody will ask you why there was a need to have this AIIB, so I basically told you about the basic and brief history about it, and that why there is a requirement to have such kind of bank. The most important thing is that if we need money for the purpose of
infrastructure development, which was not supposed to be taken care of completely by World Bank, because these are being mainly dominated by the developed countries. ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुझे आपको AIIB के बारे में इतना बताना था. अब जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, अंडर दैट यू विल गेट टू नो टुमारो दैट विच पर्टिकुलर एजेंसी और द बैंक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, अब चलिए लेक्चर को खत्म करते हैं. Under that, now as you know, currently mains test series is going for 2023. So just by 15,000 rupees, you will be able to get the benefit of 30 plus tests, which are basically sectional, full length, and moreover, essays are also being there. Then if you want to score more than 325, then you can simply go for the optional subject, and you can simply go for the list of subject given here: anthropology, public administration, geography, and mathematics. And the Daud Darbar is going on 27, 28, 29. So one is going to be held tomorrow. Then on 28th and 29th, and you have the timings in front of you: 5 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. So that is all I need to tell you. Now, one more thing before completing the class. So as you know, from 10th of October, I'm going to start my comprehensive course for economics. That is going to be very, very important for those candidates who are preparing for 2023 examination. So that we are going to do in complete English. Okay, English medium में हम पूरा का पूरा जो हमारा syllabus होगा वो complete करेंगे. And moreover, you people will also get the notes from my side for certain topics. You know, my personal handouts you will be able to get. And I would say the timing will be, as I told yesterday also, that the timing will be 3:30 to 5:30 p.m. will be the timing of the batch. तो आज के लिए इतना ही. चलिए कल मिलते हैं. Thank you very much. Take care and bye bye.